See, Saturday afternoon. Since Saturday and Sunday came so rarely, to Swaminathan it seemed absurd to waste them at home, gossiping with Granny and Mother or doing sums. It was his father's definite orders that Swaminathan should not start loafing in the afternoon and that he should stay at home and do school work. But this order was seldom obeyed. स्वामीनाथन के जो फादर थे उनके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि स्वामीनाथन दोपहर के समय घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, ना बीमार पड़ेगा वो, ना उसको सिर्फ पढ़ाई करनी है। सैटरडे आफ्टरनून था। अब सैटरडे और संडे तो कभी कभी आते हैं स्वामी के हिसाब से, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, मंडे मॉर्निंग में। तो स्वामीनाथन के लिए घर बैठना बहुत मुश्किल था। अभी फ़िलहाल दोपहर का समय है तो फादर भी घर पर ही हैं, उनकी कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है क्योंकि स्वामीनाथन के जो फादर है वो कोर्ट में काम करते हैं। स्वामीनाथन sat impatiently in his study trying to wrest the meaning out of a poem in his English reader. His father stood before the mirror, winding a turban round his head. He had put on his silk coat, now only his spectacles remained. Swaminathan watched his progress keenly. Even the spectacles were on. All that now remained was the watch. उन्होंने स्वामीनाथन बहुत ध्यान से देख रहा है कि एक चीज़, हाँ, कि अब जो है जो फादर जो है वो स्पेक्टिकल्स पहन रहे हैं, अब उन्होंने कोट पहना है, अब उन्होंने अपना हैंकरचीफ ले लिया है, इस तरह से एक एक करके कि बस फादर जाएं, कोर्ट जाएं और स्वामीनाथन भी भागने की तैयारी करें। Swaminathan felt glad. This was the last item, and after that, father would leave for the court. Mother came in with a tumbler of water in one hand and a plate of betel leaves and nuts in the other. Father drank the water and held out his hand. She gave him a little areca nut and half a dozen neatly rolled betel leaves. Betel leaves यानी पान के पत्ते और अरेका नट यानी कि सुपारी। अब जब बिल्कुल उनके जाने का टाइम था, स्वामीनाथन को बड़ी खुशी हो रही है कि चलो मुझे घूमने फिरने का मौका मिलेगा। जैसे आप लोगों को भी फादर के सामने आप लोग थोड़ा अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना कि नहीं 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 मैंने तो ऐसा किया नहीं, मैं तो कहीं जाता नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ नहीं। स्वामीनाथन सेम केस। अब मदर जैसे ही स्वामीनाथन के फादर जो है वो बिल्कुल जाने की तैयारी में थे, अचानक उसकी जो मदर थी वो सब चीज़ें लेकर आई। उसके बाद उन्होंने स्वामीनाथन के फादर को फिर से आवाज़ लगाई, उनको शायद कुछ पैसे चाहिए थे, पैसे मांगने के लिए। She gave him a little areca nut and half a dozen neatly rolled betel leaves. He put them all into his mouth, chewing them with great contentment. Swaminathan read at the top of his voice the poem about a woolly sheep. His father fussed about a little for his tiny silver snuff box and the spotted kerchief, which was the most unwashed thing in that house. He hooked his umbrella on his arm. This was really the last signal for starting. Swaminathan had almost closed the book and rising. His father had almost gone out the room, but Swaminathan stamped his foot under the table. Mother stopped father and said, "By the way, I want some change. The tailor is coming today. He has been pestering me for the last 4 days." "Ask him to come tomorrow," father said. Mother was insistent. Father returned to his bureau, searched for the keys, opened it, took out a purse and gave her the change. "I don't know how I am going to manage things for the rest of the month," he said, peering into the purse. He locked the bureau and adjusted his turban before the mirror. He took a heavy pinch of snuff and wiping his nose with his kerchief, walked out. Swaminathan heaved a sigh of relief. "Bolt the door," came father's voice from the street door. Swaminathan heard the clicking of the bolts. He sat at the window, watched his father turn the corner and then left his table. His mother was in the kitchen giving instruction to the cook about the afternoon coffee. जैसे ही उसके फादर घर से बाहर निकले, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा डोर बोल्ट करने के लिए। स्वामीनाथन को जब विश्वास हो गया, when he knew that हाँ उसके फादर जो है he has reached to the corner, now he will definitely go to court. स्वामीनाथन ने फटाफट से अपनी प्लेस छोड़ी, अपनी पोस्ट जहाँ वो बैठा हुआ था टेबल,
और मदर जो है वो कुक को, जो उनके घर में जो भी कुक काम करता था, उसको आफ्टरनून कॉफ़ी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। अचानक उन्होंने देखा स्वामीनाथन घर से बाहर निकल रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई, कम हियर बॉय, शी क्राइड एज सून एज शी सॉ हिम, आई कांट, नो टाइम नाउ, अभी नहीं आ सकता मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ आई विल गिव यू 3 पैसे, शी क्राइड। ग्रैनी भी वहीं बैठी थी। ग्रैनी ने कहा कि चलो मैं आपको 3 पैसे दूंगी स्वामी, इधर आओ। स्वामी ने उनका ऑफर डैश कर दिया। स्वामीनाथन इग्नोर्ड द ऑफर एंड डैश अवे, मना कर दिया उसने। वेयर आर यू गोइंग, मदर आस्क्ड। मदर ने बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? आई हैव गॉट टू गो, स्वामीनाथन सेड विद सीरियस फेस, मुझे जाना है, जाना पड़ेगा मुझे। आर यू गोइंग टू लूव आउट इन द सन? सर्टनली नॉट। तो तुम धूप में आवारागर्दी करने के लिए जा रहे हो? मदर ने कहा। स्वामीनाथन ने कहा, नॉट एट ऑल। वॉन्डर अबाउट रेकलेसली एंड कैच फीवर, तुम चाहते हो कि तुम बाहर धूप में घूमो और उसके बाद तुमको फीवर हो जाए, तुम बीमार पड़ जाओ? नो मदर, आई एम नॉट गोइंग टू वॉन्डर अबाउट। हैज़ योर फादर नॉट आस्क्ड यू टू स्टे एट होम ऑन हॉलीडे? मदर ने कहा, क्यों, तुम्हारे फादर ने तुमसे कहा था ना छुट्टी वाले दिन तुमको कहीं नहीं जाना है। तो स्वामीनाथन ने बहुत ही सीरियस फेस के साथ कहा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ड्राइंग के टीचर ने मुझे बुलाया है, मुझे कुछ काम है। आप क्या चाहती हैं, मैं ड्राइंग के एग्ज़ाम में फेल हो जाऊं? ऐसा बोलकर और वो वहाँ से निकल पड़ा। स्वामीनाथन ran down Grove Street, turned to his right, threaded his way through Abu Lane, stood before a low-roofed, dingy house and gave a low whistle. He waited for a second and repeated it. The door chain clanked, the door opened a little, and Manish had appeared and said, "Fool, my aunt is here. Don't come in. Go away and wait for me there." स्वामीनाथन ग्रोव स्ट्रीट की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने एक छोटा सा एक हाउस था, वहाँ जाकर धीरे से विसल बजाई और उसमें से खिड़की में से धीरे से खिड़की खोलकर मनी ने उसमें से झाँका और कहा, जाओ यहाँ से, अभी मेरी आंट वेट यहीं पर ही हैं, मैं अभी नहीं आ सकता। स्वामीनाथन उसका वेट करने लगा बहुत इम्पेशेंटली, क्योंकि उन दोनों को राजम के घर जाना था। स्वामीनाथन मूव्ड अवे एंड वेटेड अंडर अ ट्री। द सन वाज बीटिंग डाउन फायरसली। बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी थी बहुत। द स्ट्रीट वाज ऑलमोस्ट डिजर्टेड। अ डोंकी वाज स्टैंडिंग नियर अ गटर, patiently watching its sharp shadow. A cow was munching a broad green plantain leaf. Presently, Mani sneaked out of his house. Rajam's father lived in Lawley Extension, named after the mighty engineer Sir Frederick Lawley, who was at one time superintending engineer for Malgudi Circle, which consisted of about 50 neat bungalows, mostly occupied by government officials. The trunk road to Tiruchinappalli passed a few yards in front of these houses. वहीं से तिरुचिनापल्ली के लिए एक रोड जाती थी, वहीं कुछ बंगले बने हुए थे, बंगलोज बने हुए थे। वो जो बंगलोज थे उन्हीं में, क्योंकि वो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे राजम के फादर, तो राजम वहीं रहता था। राजम ने उन दोनों को इनवाइट किया था, वो दोनों राजम के घर की तरफ चल पड़े। स्वामीनाथन एंड मनी वर नर्वसली वॉकिंग अप द शॉर्ट ड्राइव लीडिंग टू राजम्स हाउस। अच्छा, वो ऐसी कभी किसी जगह पर कभी गए नहीं थे, उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, नर्वस थे थोड़े से। अ पुलिसमैन इन यूनिफॉर्म क्राइड टू देम टू स्टॉप एंड केम रनिंग टूवर्ड्स देम। जब वो लोग राजम के घर के पास पहुंचे तो एक पुलिस वाला आया। स्वामीनाथन फेल्ट लाइक टर्निंग एंड फ्लीइंग। स्वामीनाथन तो वैसे भी डरपोक था, वो एकदम मुड़ा, डर के जाने लगा। तो ही अपील टू मनी टू स्पीक टू द पुलिसमैन। उसने मनी से कहा, भाई तू ही इससे बात कर, मैं तो नहीं कर सकता। द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग देयर। मनी said in a tone in which overdone carelessness was a trifle obvious. मनी ने कहा, if Rajam is in the house, we are here to see him. He asked us to come. The policeman at once became astonishingly amiable and took them along to Rajam's room. पहले तो वो पुलिसमैन को बड़ी हैरानी हुई कि भी ये राजम के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अभी लोग बोल रहे हैं तो फ्रेंड्स होंगे उसके। उसने उन दोनों को ले जाकर और राजम के रूम में बिठा दिया। अच्छा, राजम इज़ प्रेजेंटली एट होम, वो घर पर ही है,
ठीक है। लेकिन वो बाहर वाले रूम में, वो खुद के रूम में नहीं है, वो बाहर वाले रूम में, और बिल्कुल ऐसे उंगलियों से उंगलियां जो है वो काटते हुए और इस तरह से, और वेट कर रहा है, या ये समझिए कि मनी और स्वामीनाथन को वेट करा रहा है, क्योंकि ऐसा करते हुए उसने अपने फादर को देखा था कि जब भी कोई मिलने आता था तो उसके फादर भी इस तरह से वेट कराते थे। लेकिन आखिर वो बच्चा है, ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, वो आया एकदम से। प्रेजेंटली राजम एंटर्ड, अचानक आया और उसने कहा, सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन, ही क्राइड व्हेन ही सॉ देम स्टैंडिंग। जब उसने उनको खड़े हुए देखा तो कहा, बैठ जाओ बॉयज, बहुत अथॉरिटी के साथ में और बहुत इस तरह से। In a few minutes, they were chatting about odds and ends, discussing their teachers and schoolmates, their parents, toys, and games. Rajam took them to a cupboard and threw it open. Rajam had a big cupboard in which he had some toys and everything. They were really amazed to see Rajam's room. जब वो लोग उसके रूम में ले जाए गए, there were chairs in it, actually chairs, and a good big table with Rajam's books arranged neatly on it. And what impressed them most was a timepiece on the table. अच्छा, उस ज़माने में टाइम पीस होना, बहुत इस तरह की टेबल क्लॉक या ऐसी कोई भी चीज़ का होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो और इतना छोटे बच्चे का अपना रूम और उसमें स्टडी टेबल, एवरीथिंग नीटली, सब कुछ सब बहुत अच्छा था। In a few minutes, they beheld astounding things in it. Miniature trains and motors, mechanical marvels, and a magic lantern with slides, a good many large picture books, and 100 other things. What interested Mani most was a grim air gun that stood in a corner. Rajan gave them permission to handle anything they pleased. In a short while, थोड़ी देर बाद ही वो सब लोग खेल रहे थे, और वो लोग उसके खिलौने से, क्योंकि उन्होंने इस तरह के टॉयज़ कभी पहले देखे नहीं थे, उसके पास तो सब कुछ था, मिनिएचर ट्रेन, समथिंग लाइक दैट। 2 घंटे हो गए, काफ़ी देर हो गई उन लोगों को बात करते करते। अचानक राजम ने पूछा, आर यू फेलोज एनी ऑफ यू हंग्री? राजम आस्क्ड। राजम ने पूछा, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? उन लोगों को भूख तो लग रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हाफ हार्टेडली कहा, नहीं नहीं। राजम को लगा कि अब मुझे अपनी अथॉरिटी तो दिखानी चाहिए कि मैं भी पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा हूँ। नो, दे सेड हाफ हार्टेडली, हे राजम क्राइड, अ पुलिसमैन एंटर्ड, गो एंड आस्क द कुक टू ब्रिंग सम कॉफी एंड टिफिन फॉर 3। उसने पुलिसमैन को बुलाया, बोला, जाओ कुक को बोलो 3 लोगों के लिए कॉफ़ी और सारी सब कुछ भी ईटेबल्स वगैरह लेके आए। The ease and authority with which he addressed the policeman filled his friends with wonder and admiration. इसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आने वाली है, आप लोग ध्यान से सुनना। The cook entered with a big plate full of eatables. He set down the plate on the table. Rajam felt that he must display his authority. Remove it from the table. You, he roared at the cook. वो कुक के ऊपर चिल्लाया, उठाओ इसे टेबल से। The cook removed it and placed it on a chair. You dirty ass, take it away. Don't put it there. उसने फिर चिल्लाया, यहाँ क्यों रख रहे हो? उठाओ यहाँ से। Where am I to put it, राजू? asked the cook. तो कुक ने बहुत ही अच्छे से कहा कि मैं ये कहाँ रखूँ राजू? राजम ने ज़बरदस्ती उसको चिल्ला दिया। Rajam burst out, you rascal, you scoundrel, you talk back to me. The cook made a wry face and muttered something. Put it on the table, Rajam commanded. The cook obeyed, mumbling. तो फिर कुक ने धीरे से उससे कहा, If you are rude, I am going to tell your mother. देख राजम, ऐसे मत कर, मैं तेरी मदर को बता दूंगा। Go and tell her, I don't care, Rajam retorted. He peered into a cup and cursed the cook for bringing it so dirty. अब इतने से भी वो चुप नहीं हुआ। कुक जाने लगा तो उसने बोला कि कितने गंदे कप से अंदर से, ढंग से धोए भी नहीं हैं। अब कुक को आया बहुत गुस्सा और उसने कहा, The cook looked up for a moment quietly into the plate and saying, Come and eat in the kitchen if you want food. Went away with it. उसने वो प्लेट उठाई, carried the plate और किचन की तरफ चला गया और बोला, अब अगर कुछ चाहिए ना
खुद आके लेके जाना। दिस वॉज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू स्वामीनाथन एंड मनी हु वर वेटिंग विद वाटरिंग माउथ्स। बेचारे स्वामीनाथन और मनी, उनके मुंह में पानी आया हुआ था और ये सब चीज़ें देखकर उनको भूख भी लग रही थी। और राजम ने तो बड़ी मुश्किल से ऐसे झूठी हंसी हंसी और कहा, द स्काउंड्रल, दैट कुक इज अ बफून, वेट अ मिनट, ही वेंट आउट। उसने बोला, रुको, मैं अभी इस कुक का इंतज़ाम करता हूँ। आफ्टर अ वाइल ही रिटर्न कैरिंग द प्लेट हिमसेल्फ. His friends were a bit astonished at his sign of defeat. Obviously, he could not subdue the cook. राजम थोड़ी देर बाद प्लेट लेके आया और स्वामी के मन में क्या चल रहा है? पहले तो मनी ऐसा सोच रहा है, ये राजम मुझे एक बार मौका तो दे उस कुक के साथ अकेले मिलने का, मैं उसको बताता हूँ राजम के साथ बदतमीज़ी करने का क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है। और स्वामीनाथन क्या सोच रहा है, ये राजम उसको अपनी गन से शूट क्यों नहीं कर देता, कुक को शूट कर दे, बात खत्म। राजम ने अचानक उनको शांत कर दिया, उनके दिमाग में जो भी चल रहा था। और उसने आके क्या कहा, राजम ने भी, but Rajam set their minds at rest by explaining to them, I had to bring this myself. I went in and gave the cook such a kick for his impertinence that he is lying unconscious in the kitchen. राजम वो फेंकने में कम नहीं है वो भी, तो उसने कहा मैं किचन में गया, एक्चुअली वो उसको कुक को सबड्यू तो कर नहीं पाया, उसके सामने जवाब तो दे नहीं पाया था, इसलिए मैं किचन में गया और मैंने उसको ऐसी किक दी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तो फिर प्लेट तो मुझे ही लेके आनी थी ना। एंड दैट्स ऑल द थर्ड चैप्टर। वील मीट अगेन, टिल देन टेक केयर।